Good morning, student. Chapter 4, Periodic Classification of Elements. Matter is present all around us and it can be classified into element, compound, or mixture. Did we always classify substances in this way? Take the case of elements. The history of element is very interesting, and it took a very long time for scientists to understand which substances were elements and which were not. We already know matter. In class 9th, you have studied in chapter 2 matter around us. Matter is present all around us and it can be classified into element, compound, or mixture. Matter you can define easily that has mass and can occupy space. उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. मैटर का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में होता है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. तो हम लोग सब्सटेंस को इसी तरह से क्लासिफाई करते हैं क्या? जब एलिमेंट की बात आती है तो एलिमेंट मतलब दिया हुआ मैटर में से कौन सा एलिमेंट है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा समय लगा. ऐसे क्यों हुआ? चलिए देखते हैं. एलिमेंट्स देन एंड नाउ. अकॉर्डिंग टू द फिलोसोफर एरिस्टोटल 384 to 322 before Christ, the universe is made up of 5 elements, namely fire, water, air, earth, and ether. Many centuries later, a British scientist, Robert Boyle, also did a number of experiments related to matter. On the basis of his experiment, he concluded that the 5 elements described by Aristotle were not actually elements. सबसे पहले एक फिलोसोफर आए थे जिनका नाम था एरिस्टोटल. उन्होंने बताया कि पूरा यूनिवर्स यानी पूरा विश्व जो है वो किससे बना हुआ है, तो 5 एलिमेंट्स से. और एलिमेंट्स के नाम क्या थे? फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड ईथर. पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आप हिंदी में पढ़े होंगे. उन 5 चीज़ों से बना हुआ जो हमारा विश्व है वो क्या है? उसको उन्होंने नाम दिया एलिमेंट. बट उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के भरोसे ही या उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे आए कि जो 5 एलिमेंट फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड ईथर ये एक्चुअली एलिमेंट ही नहीं है. In 18th century, a French scientist Lavoisier defined an element as a substance that could not be decomposed or broken down into simpler substances. We know that water can be broken down into hydrogen and oxygen, therefore it is not an element. Lavoisier prepared a list of 33 elements on the basis of his experiment, but today 118 elements are known. It is very difficult to individually explore so many elements and their properties. Scientists have tried to solve this problem in many ways so that elements can be easily studied. 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट लेवॉइजर आए. उनके हिसाब से एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिकम्पोज नहीं होता या ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते. यदि हम वाटर की बात करते हैं तो हम सबको पता है वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, और जब हम उसको ब्रेक करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हम वाटर को एलिमेंट नहीं बोल सकते. इस तरह से लेवॉइजर ने उस समय 33 एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाई और आज के डेट में 118 एलिमेंट हमें पता है. तो ये सारे एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए उनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया. उसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. वाई अरेंज एलिमेंट? वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अरेंज ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड यूज. In our home, we keep the cloth which we wear in one place. Other clothes, such as bed sheet, pillow cover, are also kept together but separate from the clothes we wear. Even in the clothes that we wear, we keep winter clothes separate from summer clothing. Think, when you go to a grocery shop and ask the shopkeeper for an item, how he is able to locate it easily among the different objects? Organized objects save as time and energy. That is why scientists too made many attempts to organize elements based on their properties.
In class 9th, we learned about atomic number, atomic weight, electronic configuration of element. Some elements are given in the table along with their atomic number and atomic weight. Arrange the element in the table 1 in increasing order of their atomic weight and arrange the element in table 1 in increasing order of their atomic number. हमें एलिमेंट को अरेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम देखते हैं कि हमारे घर में कपड़े जो हमें रोज़ के पहनने हैं उसको अलग जगह रखा जाता है। बाहर जाने वाले कपड़ों को हम अलग जगह रखते हैं। विंटर वाले कपड़ों को हम विंटर में निकालते हैं, बाकी उसको हम लोग फोल्ड करके अंदर रख देते हैं, यानी कबर्ड में रख देते हैं। समर क्लोथिंग अलग होता है। इस तरह से हमने कपड़ों का क्या किया है, कैटेगराइज किया है, अलग अलग हिस्सों में उसको बांटा है। या फिर आप कहीं ग्रोसरी शॉप में जाते हो राशन लाने के लिए, तो राशन वाला आप जो मांगते हो उसको तुरंत निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसने राशन की सारी चीज़ों को क्या किया है, ऑर्गेनाइज करके रखा है, जिसकी वजह से उसका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होता है। इस तरह से हमने लास्ट ईयर देखा था कि एलिमेंट्स को क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ यू हैव टू अरेंज द एलिमेंट इन द टेबल in increasing order of their atomic weight and atomic number. See, element sulfur is given, atomic weight 32, atomic number 16. Now, did you get the same order of element in both the cases? And write the electronic configuration of the given element. आपको ये सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इस हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा हीलियम, इसका एटॉमिक वेट है 4 और एटॉमिक नंबर है 2। इस तरह से आप इन सारे टेबल को अरेंज करके इस सारे एलिमेंट्स को उस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, दिस इज योर टुडेज होमवर्क। थैंक यू।